নিৰ্বাচনী পুঁজি কেৱল এটা ব্যৱসায়, কেৱল ব্যৱসায় নহয়, ই এটা ফাণ্ড। এতিয়ালৈকে আমি ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ। আজি আমি আন এক প্ৰকাৰৰ ফাণ্ডৰ বিষয়ে কথা পাতিম। কেনেকৈ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ফাণ্ডটো কঠোৰ কৰা হৈছে, কংগ্ৰেছৰ একাউণ্টবোৰ ফ্ৰিজ কৰা হৈছে, এমাহ ধৰি বেংক একাউণ্টবোৰ ফ্ৰিজ হৈ আছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, প্ৰাৰ্থীসকলৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পৰা ৰাইজলৈকে ই ব্যয় কৰিব পৰা নাই। এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু চাওক বিজেপিয়ে ইয়াক কেনেদৰে প্ৰতিৰক্ষা কৰি আছে। গতিকে শেষলৈকে চোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াক আন কিবা বুলি ক'ব পাৰি। দানৰ ফাণ্ডটো থাকিব লাগে। ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ উদ্বেগ কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ মুখত স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে। কিন্তু এই চিন্তা কেৱল কংগ্ৰেছৰ বাবেই নহয়। 21 মাৰ্চৰ ৰাতিপুৱা আহ্বান কৰা সংবাদমেলখন কেৱল কংগ্ৰেছৰ বাবেই নহয়, গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰা যিকোনো দলৰ সমৰ্থকৰ বাবে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। মোদীৰ সমৰ্থকসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিয়ে ভোট দি জয়ী কৰে, গণতন্ত্ৰৰ পথ বাছনি কৰাৰ গৌৰৱ লাভ কৰে। কিন্তু মোদীৰ সমৰ্থকসকলে বুজি পোৱা উচিত যে এই সংবাদমেলত কি কোৱা হৈছিল, তাৰ পিছত বিজেপিয়ে কি কৈছিল। সাৱধানে চিন্তা কৰা উচিত যে যেতিয়া ক্ষেত্ৰখনত কোনো বিৰোধিতা নাথাকে, তেতিয়া খেলপথাৰলৈ অহাৰ আগতে বিৰোধী দলক আঁতৰ কৰা হ'ব বা দুৰ্বল কৰা হ'ব। তেতিয়া কেনেধৰণৰ গণতন্ত্ৰ থাকিব? নিৰ্বাচনত দুটা পক্ষ থাকে, আনটো পক্ষৰ বেংক একাউণ্ট বন্ধ হৈ যায়, প্ৰচাৰ আৰু মিডিয়াৰ পৰা লুপ কৰি দিয়া হয়। এতিয়া কেনেধৰণৰ গণতন্ত্ৰ থাকিব? মোদীৰ সমৰ্থকসকলে বুজি পাব লাগে যে এনেকুৱা গণতন্ত্ৰ বিচাৰে নেকি? কংগ্ৰেছে যি কৈছে এই দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে চিন্তাজনক। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। কংগ্ৰেছৰ একাউণ্ট জব্দ কৰি চৰকাৰে কি বাৰ্তা প্ৰদান কৰিব বিচাৰে? এয়াই নেকি কোনোবাই 400খন আসন পাব লাগিব, আপুনি ফিল্ডৰ পৰা আঁতৰক, আমাক সকলো আসন দিয়ক? এই নিৰ্বাচন এই নীতিৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হৈছে নেকি? এইটো পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন নে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন? 16 মাৰ্চত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই তেওঁৰ সংবাদমেলত বাৰে বাৰে লেভেল প্লেয়িঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। 2024 চনৰ নিৰ্বাচন হৈছে এক নিৰ্বাচন য'ত সমতাৰ কথা হৈ আছে। সমতাৰ কথা হৈ আছে, কিন্তু সমতা দেখা নাযাব। এইটো চোৱা, এইটো নিশ্চিত কৰা নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম। এইটো চোৱা, এইটো নিশ্চিত কৰা নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম। কংগ্ৰেছ দলটোৰ 11টা বেংক একাউণ্ট বন্ধ কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আজি সেই স্তৰৰ খেলপথাৰৰ सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है। और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव
ना लड़े और ना लड़ पाए, ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना, चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। এফালে আছে বিজেপি, যাৰ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা 12,930 কোটি টকাৰ চান্দা আছে। এইটো জ্ঞাত উৎসৰ পৰা অহা দান। ইয়াৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী অনুদান হৈছে 8,251 কোটি টকা। কোম্পানীৰ বাবে বোৱা সকলো বণ্ড ক্ৰয় কৰা হৈছে। বিজেপিয়ে ইয়াৰ 56% লাভ কৰিছিল, কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 11% লাভ কৰিছিল। ইমান ডাঙৰ পাৰ্থক্য। এইটোৱে নিৰ্বাচন লেভেল প্লেইং ফিল্ডৰ দাবী মিছা প্ৰমাণিত হৈছে। এটা দলে ধাৰাসাৰ গতিত প্ৰচাৰ চলাব, আন এটা দলে প্ৰচাৰৰ কাৰণে দেখা নাযাব। কংগ্ৰেছৰ বেংক একাউণ্ট 1000 কোটি টকাৰ হিচাপ নিদিয়াৰ কাৰণে বন্ধ কৰা হোৱা নাই। কোষাধ্যক্ষ সভাপতি অজয় মাকনে কৈছিল যে মাত্ৰ 14,90,000 টকা, আৰু এই ধন কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলে নগদ ধনত দিছিল। ইয়াৰ হিচাপ দিয়াত পলম হৈছিল। কিন্তু এইটো ইমান ডাঙৰ ভুল নেকি? এইটো ডাঙৰ অপৰাধ নেকি? এইটো ইমান ডাঙৰ অপৰাধ যে নিৰ্বাচনৰ মাজত বিৰোধী দল গোটেই একাউণ্টটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু তেওঁক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ অনুমতি দিব নালাগে। জনসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ঢৌ থাকিলে যুঁজিব নোৱাৰিব। আনকি যেতিয়া বিজেপিয়ে 400খন আসন লাভ কৰিব, 400খন আসন লাভ কৰিছে, বিৰোধীয়ে এতিয়াও 400খন আসন লাভ কৰি আছে, কংগ্ৰেছ পাৰ্টি একাউণ্ট কিয় বন্ধ কৰা হৈছে? वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है। इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई है। आप जरा देखिए, ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया है। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया, और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। हम लोगों के पास में मुख्यतः 3 बातें हैं कहने की। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। कभी किसी ने भी पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों